નમસ્તે દર્શક મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે. ભારત ટૂંક સમયમાં બ્યુરો ઓફ પોર્ટ સિક્યુરિટીની સ્થાપના કરશે, કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ. નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ્સ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગો અને આયુષ વિભાગના મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે ભારતના દરિયાઈ ક્ષેત્રના એક વિઝનનું અનાવરણ કર્યું હતું. આ પરિવર્તનકારી અસરનું વચન આપતી મુખ્ય પહેલોની રૂપરેખા આપવા પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી. પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા મંત્રી સોનોવાલે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં દેશના તમામ બંદરો પર સુરક્ષાને અપગ્રેડ કરવા માટે બ્યુરો ઓફ બંદર સુરક્ષાને એકસાથે મૂકશે. તેમણે ટકાઉ વિકાસ અંગેના સરકારના કાર્ય ઉપર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના બંદરોમાં હાઇડ્રોજન હબ વિકસાવવા માટે મંત્રાલયની મહત્વાકાંક્ષી યોજના વિશે જણાવ્યું કે તમામ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના બંદરો હાઇડ્રોજન હબ બનાવવાની શક્યતાઓ શોધશે. તેમણે ઉમેર્યું કે દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટીએ આ સાહસ માટે રૂપિયા 1.68 લાખ કરોડના એમઓયુને આખરી ઓપ આપી દીધો છે. તમામ મોટા બંદરોએ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યા છે અને રાજ્યો પણ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરી રહ્યા છે. દેશની કુલ બંદર ક્ષમતા 2600 એમટીપીએથી વધીને 2047માં 10,000 એમટીપીએથી વધુ થશે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. મંત્રીએ ભારતના વધતા દરિયાઈ કદ અને આગામી ગ્લોબલ મેરીટાઈમ ઇન્ડિયા સમિટ 2023નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સમિટને સંબોધતા એમઓપીએસડબલ્યુના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રીપદ નાયકે જણાવ્યું કે નવા યુગની તકનીકોને અપનાવવા, ટકાઉ જીવન પ્રણાલીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને પર્યાવરણીય સલામતીની ખાતરી કરવા પર સતત ભાર મૂકવો જોઈએ. આ મુખ્ય પાસાઓને ખંતપૂર્વક સંબોધીને અમે સામૂહિક રીતે અમારી દરિયાકાંઠાની વસ્તીની સર્વગ્રાહી સુધારણામાં યોગદાન આપી શકીએ છીએ. ગુજરાતના કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં ટકાઉ વૃદ્ધિ માટેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા નવીનતા અને સમૃદ્ધિને આગળ ધપાવે છે, જે ભારત માટે જીવંત દરિયાઈ ભવિષ્ય તરફનો માર્ગ નક્કી કરે છે. બીજા દિવસે સાગરમાલા કાર્યક્રમના અમલીકરણ સંબંધિત વિવિધ વિકાસ એજન્ડા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ લોથલ, ગુજરાતનો વિકાસ, રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગોનો વિકાસ, રોપેક્સ, ફેરીના પ્રચાર માટે પડકારો અને તકો, શહેરી પેસેન્જર વોટરવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, રોડ અને રેલ પોર્ટ કનેક્ટિવિટી, દરિયાકાંઠાના રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સફળતાની વાર્તાઓ અને રાજ્ય મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા મુદ્દાઓ, પડકારો વિશે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટ દીપક જગતાપ, રાજપીપળા. MOPSW, Shri Shantanu Thakur report, Government of Karnataka, Crown North. Now may I request Honorable Union Minister to please address the media. गुजरात की पत्रकार बंधु, आज देश की एक पवित्र भूमि केवड़िया में आप सबका स्वागत है. और आप सबको मालूम है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में पिछली 9 साल में जो परिवर्तन संभव हुई है, इसकी वजह से भारत जाग उठा है और देश ने दुनिया में 5वीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है. तो इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की हर नागरिक को मनोबल मिली है, शक्ति मिली है, आत्मविश्वास दुगुना बढ़ी है. और इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य हमें दी है, बाय 2047 भारत को एक डेवलप नेशन के हिसाब से खड़ा करना होगा. और उसी दिशा पर हमारी भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार,
सभी प्रांतों की जनता अब इसी बिंदु पर प्रतिबद्ध हुई है और हम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से सभी हमारे कोस्टल स्टेट की यूनियन टेरिटरीज को साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी कदम उठाए हैं और आज केवड़िया में 2 दिन का हम लोगों ने मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक यहाँ अनुष्ठित की। इस बैठक में सभी हमारे मैरीटाइम स्टेट शामिल हुई, यूनियन टेरिटरी शामिल हुई और हम लोगों ने डिटेल में सारे बिंदुओं को चर्चा की ताकि हम अगले दिनों में जैसे हमें लौह पुरुष हमारे परम आदरणीय देश की जिन्होंने सभी प्रदेश को एकत्रित की थी, ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चरणों पे समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए हम लोगों ने सभी को साथ लेकर जैसे मोदी जी ने जो मंत्र दी है, टीम इंडिया की मानसिकता से हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। उसी हिसाब से केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट को बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने अगले दिनों में अपने पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है और ये भी लक्ष्य रखा गया है बाय 2047 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है अब मिलियन मैट्रिक टन, उसको हम अगली 2014-7 तक 10,000 मिलियन मैट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया अमृत काल में, यानी कि बाय 2047 विल अचीव दैट टारगेट 10,000। सभी पोर्ट जितना भी हमारे देश के अंदर पोर्ट है, सभी पोर्ट एक साथ मिलकर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस काम को हम सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। और दूसरी बिंदु है हमारे जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हमारे अगले दिनों में कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है और हमारे जितना भी पोर्ट है सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओए हुए हैं, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तीसरी बात हुई कि अगली अक्टूबर को दिल्ली में हमारे 17 से 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सुनहरा मौका है। इसके पहले भी 2 बार हो चुके हैं, जिसके जरिए काफी इन्वेस्टमेंट संभव हुई है और अगले दिनों में जितना भी हमारे दुनिया में, विश्व में मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन को इस सभा में बुलाया गया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इसी समिट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हर मैरीटाइम स्टेट, कोस्टल स्टेट इस कार्यक्रम में भाग ले। इस विषय पर भी चर्चा हुई और हमारे हिंदुस्तान में
चाहे कोस्टल शिपिंग हो, चाहे एक्जिम ट्रेड हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, इसमें 10 लाख करोड़ का पोटेंशियलिटीज है। तो अगले दिन में यही लक्ष्य होगा कि हमारे यहाँ अधिकतर अधिक एफडीआई संभव हो और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ से अब तक पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के सिलसिले में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जो भी कदम रखा गया है, इसके वजह से हमारा पोर्ट का इफिशिएंसी बढ़ चुका है। तो इसलिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से 15 लाख से अधिक यहां रोजगार मिलेगा। तो ऐसा ही लक्ष्य लेकर हम लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। तीसरी बात, हमारे नेशनल वाटरवेज, आप लोगों को मालूम है 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज को उन्होंने कुछ भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उनके पास कोई पॉलिसी भी नहीं थी, प्रोग्राम भी नहीं थी, कोई उनका दिशा भी नहीं थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा दी और कांग्रेस का कार्यकाल में सिर्फ 3 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, ओनली 3। मोदी जी ने उनको 111 तक मान्यता दी और आज 2014 तक सिर्फ 16 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हुआ करते थे। लेकिन आप वहां से लेकर सिर्फ 9 साल के अंदर नेशनल वाटरवेज को मान्यता दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसके वजह से आज 125 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा इसको 500 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। और पीपीपी मोड में भी अपने सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये तय की है, अभी जो 50% है उसको हम 85% तक हम ले जाने का रोड मैप हम लोगों ने प्रस्तुत की है। और साथ साथ में हमारी अगले दिनों में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये भी बनेगा और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु, आप लोगों ने हमेशा हमें साथ दी है और इस सिलसिले में भी आप हमारे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप भी साथ देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और भारत को विकसित देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए हर नागरिक ने आप मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रतिबद्ध हुए हैं। हमने देखी है हर प्रांत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्रों के द्वारा पिछले 9 साल के अंदर जो विकास संभव हुई है, हर प्रदेश को शक्ति मिला है। देश के अंदर ऐसा कोई प्रदेश, ऐसा कोई केंद्र शासित इलाका नहीं है जिसको शक्ति नहीं मिला। सबको एक इक्वल स्टेटस देते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट एजेंडा को जिस हिसाब से आगे बढ़ाया, इसके वजह से आज देश जाग उठा है। देश ने दुनिया में शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है और आप लोगों ने देखी है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है और इंडिया इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर, सेंट्रल स्टेज पर किस हिसाब से आगे बढ़ाने का उन्होंने काम की है, आप लोगों ने खुद देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मदद दें। धन्यवाद। जय हिंद।